राइट, इसको शॉर्टकट लिखते हैं हम लोग PBT. बस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में उसके कुछ पोस्टुलेट्स है। पोस्टुलेट मतलब क्या बच्चे लोग? Assumptions. ओके, एनीबॉडी कोई पोस्टुलेट आपको याद है अभी भी? मैंने जो लास्ट टाइम बताया उसमें से कोई याद है आपको पोस्टुलेट्स? Electron Sir, in the half-filled 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 valence orbital must take have part in the bond opposite formation. ओके, half-filled orbital take part in the bond formation. Very good. दूसरा, the orbital must contain Electron electrons in the with opposite spin. half-filled valence must have opposite spin. very good. और Both the They do not orbital with opposite overlap. spin take part 100% with overlap. each other And to the form opposite covalent bond. sign get neutralized. ओके गुड, बोलते जाओ। ठीक है, चलो Greater the extent of overlap, stronger is the bond. वेरी गुड। चलो हाँ, तो क्लास कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, राइट? तो क्लास एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एस सबशेल में 1. वन ऑर्बिटल, राइट? व्हिच ऑर्बिटल? S orbital. S orbital. तो ओनली वन ऑर्बिटल होता है, तो यू ड्रॉ ओनली वन बॉक्स, राइट? Yes. 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 So in one orbital we can put how many electrons? 2. 2. 2. So class, if I put only one, so it is Half-filled. Half-filled. so only half-filled orbital can take part in the bond formation. Bond formation. p subshell में आपके 3 ऑर्बिटल्स, राइट? 3. Yes. Yes. py and pz. PZ. So we draw 3 boxes. तो मतलब px में अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो it is half filled. Half-filled. होगा तो half filled. Half filled. होगा तो भी half filled, right? Half-filled. Yes. half filled मतलब containing how many electrons? 3 electron. ना एक Three. ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। 1 electron. बस px एक, देखो ये px एक ऑर्बिटल, राइट? Yes. Yes. ये py दूसरा ऑर्बिटल है और ये pz तीसरा ऑर्बिटल है। Orbital है. अगर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन तो कैसा होता है ऑर्बिटल? बोलो, हाफ फील्ड होता है, राइट? Half filled. तो प्लस जो ऑर्बिटल बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है वो कैसे उनके ऑर्बिटल कैसे होना चाहिए? हाफ फील्ड। Half filled. Half filled. Half-filled. वो ऑर्बिटल कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए? बोलो, दे मस्ट प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। Valence shell. Valence shell. वैलेंस शेल मतलब कौन सा शेल में प्रेजेंट होना चाहिए? Outermost shell. Last shell. Last. लास्ट शेल, ठीक है? तो क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन समझो मेरा, हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर कितना हाइड्रोजन का? 1. 1. तो क्लास का हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? Yes. Yes. क्लास एटॉमिक नंबर 1, तो 1s1, राइट? S orbital half-filled. s ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, तो सिंस s ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, हाइड्रोजन का फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, Covalent bond. कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो क्लास समझा, हमारे पास ये न्यूक्लियस है। व्हाट इज शेप ऑफ s ऑर्बिटल? Spherical. तो हमारे पास स्फेरिकल शेप s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का। this orbital of hydrogen, right? Okay, spherical shape. Plus electron है उसमें। Plus we have one more s orbital, we have one more hydrogen, हमारे पास और एक हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1, राइट? 1s1। तो उसके बाद भी क्या है बोलो? 1 electron. 1 इलेक्ट्रॉन, राइट? Yes. इसके बाद भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लास ये एक हाइड्रोजन आइटम है और ये दूसरा हाइड्रोजन आइटम है, राइट? दोनों Yes. क्या है? एक अनपेयर्ड, एक इलेक्ट्रॉन है which is unpaired, और you can say half filled orbital. Which orbital half filled है? S orbital. s orbital. तो class, तो जब s orbital of one hydrogen will overlap, मतलब overlap मतलब क्या? टक्कर करेगा किसके साथ? s orbital of other hydrogen. हाँ, तो half filled orbital of one hydrogen atom overlap with half filled orbital of other hydrogen atom. तो जब half filled orbital overlap करेंगे आपस में, तो electrons get shared, right?
and covalent bond is formed. तो ये सबसे पहला assumption है, right? Yes. 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 तो class covalent bond is formed, ये टेक्स्ट बुक वाला लिखता हूँ मैं. Covalent bond is formed when half filled, बोलो, valence orbitals. Valence मतलब क्या बच्चे लोग? Last orbital. Last orbital. Valence orbital. Valence orbital last मतलब orbital present in the valence shell. Half filled valence orbital, the valence shell में orbital of one atom क्या होना चाहिए? Overlap. Overlap. with किसके साथ बोलो? Half filled Other hydrogen. half filled बोलिए, half filled valence orbital Valence orbital of other hydrogen. क्लास में पहला क्वेश्चन आपको क्लियर है? पहले बताओ हाँ या ना. Yes. Yes. और दूसरी बात, क्लास सिर्फ इलेक्ट्रॉन मेरे पास हाइड्रोजन है, दोनों का ऑर्बिटल हाफ फेड है, तो क्लास एक ऑर्बिटल इसका दूसरा ओवरलैप करने वाला है. ये ऊपर वाला डायग्राम देखो, ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है और ये भी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है. क्लास क्या वो बॉन्ड बनाएंगे? No. नहीं. No. ठीक है, एक का इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, तो एक का इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है. क्या बॉन्ड बनाएंगे? No. 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 क्लास अगर एक क्लॉकवाइज कर रहा है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो Yes. 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 what is second postulate? The electrons in the half filled valence Half-filled orbital. orbital Must have have opposite spin. The electrons in the half filled valence orbital, right? Yes. Yes. Must have opposite spin. ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है, राइट? तो क्लास तीसरा, तो क्लास ये ऊपर का पहला इलेक्ट्रॉन कैसा घूम रहा था? क्लॉकवाइज. और दूसरा कैसा था? Anti-clockwise. एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज. वन इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग क्लॉकवाइज, अदर इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग एंटी क्लॉकवाइज. तो जब ओवरलैप हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? पेयर हो जाते हैं, राइट? Yes. Yes. तो क्लास उनका स्पिन क्या हो जाता है बोलो फिर? Neutralize हो जाता निकला जाता है, कैंसिल हो जाता है. क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मिला के टोटल स्पिन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है. Zero. तो दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द स्पिन. तो क्लास दूसरा पोस्टुलेट क्या बोलता है? ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, ऑर्बिटल जब बॉन्ड बनता है ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, the half-filled orbitals overlap, बराबर? half-filled orbitals overlap and opposite spins बोले क्या हो जाते हैं? Neutralize. है. Neutralize. Neutralize. of the electrons get neutralized. क्लास यहाँ पे डाउट है कुछ? No. क्लास में था. हाँ, अभी नेक्स्ट वाला ध्यान दो केयरफुली. तो क्लास हम लोग इलेक्ट्रॉन को कैसे एज्यूम करते हैं? सॉरी, वी एज्यूम इलेक्ट्रॉन एज अ क्लाउड. याद है मैं आपको लास्ट टाइम बताया था, इलेक्ट्रॉन को क्लाउड जैसा एज्यूम करते हैं, बराबर? इलेक्ट्रॉन हैव टू कैरेक्टर, वेव कैरेक्टर एंड पार्टिकल कैरेक्टर. तो हम लोग इलेक्ट्रॉन का वेव कैरेक्टर कंसीडर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसा है. अच्छे से अगर एज्यूम करना है इलेक्ट्रॉन किस जैसा होता है? कॉटन कैंडी जैसा. गुड्डे के बाल देखा हमने कॉटन कैंडी कभी? तो इलेक्ट्रॉन आप एक चीज दिखा नहीं सकते, इट इज लाइक अ वेव, इट कैन बी लाइक अ कॉटन. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वेव है, बराबर? आपको दिखा है इलेक्ट्रॉन वेव? येलो कलर से मैंने शेड किया, दिखा आपको? Yes.
तो क्लास Yes. इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, व्हाट इज एस ऑर्बिटल? इट इज 3-dimensional space where maximum probability of finding electron, right? तो इलेक्ट्रॉन Yes. कहाँ मिल सकता है? इस स्फेरिकल जोन में किधर मिल सकता है? एक्सेप्ट कहाँ पे? एक्सेप्ट न्यूक्लियस Nucleus पे. Nucleus. नहीं हो सकता, राइट? हाँ, मतलब ये इधर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, दिख रहा है एवरीवन? Yes. दूसरे का। तो क्लास जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, क्लास सबसे पहला क्वेश्चन, तो जब इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करेंगे तो क्लास पहला न्यूक्लियस और दूसरा न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, बोलो? पहला Repulsion. 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 हाँ क्लास, ये येलो कलर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ये पिंक कलर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड में क्या होगा? पहले आइटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दूसरे का इलेक्ट्रॉन क्लाउड में क्या होगा? अट्रैक्शन और रिपल्शन? रिपल्शन होगा। रिपल्शन, Repulsion. Repulsion. रिपल्शन। पर क्लास एक इलेक्ट्रॉन, एक आइटम का न्यूक्लियस और दूसरे के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? Attraction. Attraction. तो क्लास यहाँ पे कौन सा फोर्स है? अट्रैक्शन फोर्स है, रिपल्शन फोर्स है? Attraction. दोनों है, दोनों. दोनों. दोनों है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस को क्या कर रहा है? Repel. Repel. में ड्रॉप होगा। न्यूक्लियस, एक का न्यूक्लियस दूसरे के न्यूक्लियस को क्या कर रहा है? Repel. Repel. न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, Repulsion. Repulsion. हाँ, पर न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? Attract. Attraction. ठीक है। तो क्लास जब ओवरलैपिंग होता है तो दोनों एटम के बीच में, देखो ये दिख रहा है, दोनों ये कॉमन रीजन आपको दिखाता हूँ ब्लू कलर से। क्लास दिख रहा है कॉमन रीजन? Yes. Yes. इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी Yes. बहुत बड़ा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्लास तो देखो इलेक्ट्रॉन जो पहले इस पूरे जोन में थे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, येलो कलर के जोन में पूरा इक्वली एंड पिंक कलर के जोन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। और जब ओवरलैप होता है ना तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा कहाँ पे आते हैं? इस कॉमन जोन में आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कॉमन Common जोन zone. जो हो जाता है। तो क्लास इधर का डेंसिटी भी कम हो जाएगा थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का, बढ़ इधर जाएगा. इधर इधर का भी कम हो जाएगा। और दोनों का कॉमन जोन में डेंसिटी क्या हो जाएगा? कॉमन जोन में, Increase. Increase. कॉमन जोन में डेंसिटी बढ़ेगा। क्लास अगर डेंसिटी बढ़ेगा कॉमन जोन में दोनों के, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, राइट? तो क्लास ये इलेक्ट्रॉन इस दो न्यूक्लियस के बीच का रिपल्शन बढ़ाएंगे कम करेंगे, बोलो? कम दो करेंगे. इलेक्ट्रॉन कम करेंगे, बराबर ना? तो ये जो पहला न्यूक्लियस है और ये दूसरा न्यूक्लियस है, उनके बीच का रिपल्शन कम करने का काम कौन करेगा? ये बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है वो। क्लियर है Shared सबको? electron. यस और नो? Yes. Yes. तो शेयर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? शेयर इलेक्ट्रॉन करते क्या, बोलो? दो न्यूक्लियस के बीच के रिपल्शन को कम करने का कम काम करते करते हैं, राइट? Yes. ठीक है क्लास। तो इलेक्ट्रॉन्स कैन गेट यूटिलाइज the increased electron density increased electron density decreases the repulsion, ठीक है? decreases the repulsion between Nucleus. nuclei, right? Yes. between two nuclei, दो न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन कम करने का काम करता है। हाँ क्लास, मुझे तो जब बॉन्ड बनता है तो आपको बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है या बॉन्ड बनते हुए एनर्जी रिलीज होता है? कभी आपने सुना है? जब बॉन्ड बनाते हो तो बॉन्ड बनाते वक्त एनर्जी रिलीज होता है या बॉन्ड बनने के लिए एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है? Release होते. याद रखो, वेरी गुड। क्या होता है? एनर्जी Release. रिलीज होता है। जब कोई भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है। बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आपने नाम सुना है कभी एक्सोथर्मिक? Yes. Yes. एक्सोथर्मिक मतलब Heat is Heat released. release होता है। Release. रिलीज होता है। तो क्लास जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो हीट रिलीज होता है, बराबर? Yes. यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो जब बॉन्ड, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? ये एक मिनट बंद करके वापस चालू करता हूँ। तो whenever any bond is formed, एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है। Release. Released. हाँ तो क्लास जब एनर्जी रिलीज होता है तो सिस्टम बिकम स्टेबल और अनस्टेबल। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, रुको। Stable होगा. Stable होगा. क्लास याद रखो, एक रूल है साइंस का, मोर एनर्जी, हाँ ये थोड़ा शायद हैंग हो गया है, हाँ बोला अभी आ गया। हाँ प्लस मोर एनर्जी मतलब लेस स्टेबिलिटी, ठीक है? Yes. Yes. और लेस एनर्जी मतलब
More stability. More stability. more stability. Class screen share है? Yes. Yes. Okay. तो class more energy less stability, less energy more stability. class जब एटम A और एटम दूसरा एटम B जब बॉन्ड बनाएंगे, राइट, तो इनके दोनों के पास जितना मिला के एनर्जी है उससे कम एनर्जी इन दोनों के पास है, राइट? ये समझा आप? Yes. 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 फॉर एग्जांपल क्लोरीन और क्लोरीन बॉन्ड बनाएगा, राइट, और क्या बनाएगा? Cl2. Cl2. तो दोनों के पास समझो एनर्जी कितना है, 50 किलो जूल से फॉर एग्जांपल, तो इनके पास एनर्जी कितना है, से 40 किलो जूल। तो क्लास इस प्रोसेस में जब बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड बनते वक्त एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, रिलीज Release हुआ, हो गई. रिलीज हो गया। Release. Release. 10 kilojoule Plus, release. तो हमारा रूल क्या चलता है, लेस द एनर्जी More मोर द stability. More stability. क्या देखो, दुनिया में जब कोई भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, और जब एनर्जी रिलीज होता है तो एनर्जी किसके लिए होता है, उस बॉन्ड को स्टेबल बनाने के लिए, राइट? Yes. क्लियर? Yes. तो अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है मतलब बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल है? ज्यादा ज्यादा stable. ज्यादा stable. स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल, तो जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना बॉन्ड ज्यादा क्या होगा, Stable. स्ट्रॉन्ग होगा। Stable. स्ट्रांग होगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा, राइट? उसको तोड़ना आपके लिए मुश्किल होता जाएगा, ठीक है? एवरीवन इज क्लियर विद Yes. दैट? हाँ Yes. हाँ। प्लस थिंग, तो हमने क्या क्या देखा, ओवरलैपिंग होता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए एंड ऑल। ओके, क्लास नेक्स्ट थिंग, समझो हमारे पास बॉन्ड है, फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है? F बराबर F2. 2। और क्लास क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन रहा है Cl2. Cl2. Cl2। हाँ क्लास, क्या दोनों बॉन्ड सेम स्ट्रांग है, इक्वली स्ट्रांग है? नो, No. No. क्लास रूल बोलता है जब ओवरलैपिंग हो रहा था किसके बीच में, फ्लोरीन का p ऑर्बिटल, प्लस p ऑर्बिटल क्यों बोलो? Valential Pl. Valence. सर वैलेंशियल है वो। क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल किसमें है, p P हाँ, orbital. p है, राइट? देखो देखते हैं, 1s2 2s2 2p5, राइट? Yes. तो p में 5 इलेक्ट्रॉन, राइट? px py pz, px PZ में 1 इलेक्ट्रॉन है. pz। तो प्लस जो आपके पास वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए, वो कौन सा ऑर्बिटल है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल? PZ. 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 व्हाट इज शेप ऑफ p ऑर्बिटल? Dumbbell. Double. Dumbbell. तो हमें मैं डंबल क्यों ड्रॉ किया? Yes. तो प्लस फ्लोरीन का एक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा इसके साथ, दूसरे फ्लोरीन के साथ। Chlorine. तो प्लस इनके बीच में क्या होने वाला है, बोलो, दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होना है, राइट? Overlapping. प्लस सिमिलरली क्लोरीन का एक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा किसके साथ, दूसरे क्लोरीन के साथ। Chlorine. तो उनके आपस में क्या होना है, बोलो? Overlap. ओवरलैपिंग। Overlap. तो क्लास मैं बोलता हूँ आपको इस केस में ओवरलैपिंग ज्यादा होता है, कौन से? क्लोरीन क्लोरीन में। तो क्लास कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, फ्लोरीन फ्लोरीन या क्लोरीन क्लोरीन? Chlorine. 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 मोर ओवरलैप, ठीक है? तो क्लास Yes. क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है किससे? Fluorine से. Fluorine. Chlorine से. तो क्लास पहले केस में फ्लोरीन फ्लोरीन के केस में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप कम है, दूसरे केस में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ज्यादा है। क्लास यहाँ पे ओवरलैप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से क्या होता है, एनर्जी रिलीज ज्यादा होता है, और एनर्जी रिलीज ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है। तो क्लास Stable होता है. अगर आप बॉन्ड तोड़ना चाहते हो फ्लोरीन और क्लोरीन का, कौन सा बॉन्ड तोड़ना डिफिकल्ट है, फ्लोरीन या क्लोरीन का? Chlorine. 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 क्लोरीन, बराबर है? हाँ, गुड, वेरी गुड। ये समझ रहे हैं आपको? Yes. 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 ज्यादा आप फास्ट हो रहा है, बहुत बोलिए आप, बाकी लोग भी। क्लास में बहुत ज्यादा फास्ट सिखा रहा हूँ, जो भी बोलो आप। अब बोलो क्या लग रहा है आपको, बहुत ज्यादा फास्ट? Normal है sir. क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फ्लोरीन कितने बॉन्ड बना सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड? तो आपका आंसर है सिर्फ एक, राइट? One. 1s2 2s2 2p5. 2p5, उसके पास एक ही वैलेंस हाफ फील्ड ऑर्बिटल, राइट? Yes. 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 प्लस ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है, देखते हैं। 1s2 Two. एटॉमिक नंबर उसके कितना, ऑक्सीजन का 8 है, 1s2 8. 2p4, राइट? एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4 प्लस p सबशेल में 3 ऑर्बिटल है, px py एंड pz। अगर हम लोग रूल अप्लाई करेंगे हंस रूल, तो px में एक, py में एक, pz में एक, वापस px में एक। तो क्लास PY और PZ. तो क्लास यहाँ पे PZ valence. दो ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, कौन सा, py एंड pz। PZ. Z. ऑक्सीजन कन्फर्म हाउ मेनी बॉन्ड्स? 2 bonds. 2. 2 बॉन्ड। ठीक है,
नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7. 7. 7. 3 bond. 1s 3 bond. 3 bond. 2 2p 3 2p3. तो p सबसे पहले ऑर्बिटल है और तीनों के कितने से है Half filled है. half 3 filled। Half filled है. और प्लस क्या वैलेंस शेल में है yes हाँ Yes. Yes. और व्हाट वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन सेकंड शेल राइट Second shell. yes क्योंकि आपके आगे कोई थर्ड शेल दिख रहा है आपको नहीं ना हाँ no तो प्लस सेकंड शेल में कौन सा ऑर्बिटल p ऑर्बिटल हाफ फील्ड राइट px ऑर्बिटल p ऑर्बिटल एंड pz ऑर्बिटल PZ orbital. उस हिसाब से फ्लोरीन कैन फॉर्म वन ओनली वन बॉन्ड ऑक्सीजन कैन फॉर्म 2 टू Two बॉन्ड्स bond. एंड नाइट्रोजन फॉर्म 3. 3 bond. ठीक है तो मतलब अगर एटम के पास एक से ज्यादा हाफ फील्ड ऑर्बिटल होगा तो क्या कर सकता है वो एक से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है राइट Bond बना सकते हैं. Yes. ठीक है तो मैं लिखता नहीं चलेगा ना yes प्लस अगर आपको एग्जांपल बताओ ऑक्सीजन का एग्जांपल बताओ तो क्या राइट वाटर क्ला वाटर में कितने बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन बोलो 2 Two. bond 2 bond. या फिर मैं सीधा दूसरा एग्जांपल बताता हूं आपको O2 बस O2 ऐसा होता है क्लास O कितने बॉन्ड बना रहा है 2 Two. bond. दो 2 बॉन्ड bond. तो हाँ प्लस नाइट्रोजन अमोनिया एग्जांपल कितने बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन 3 3 bond. 3. ये बॉन्ड्स राइट 1 2 3 हाँ क्लास फ्लोरीन कैन फॉर्म ओनली 1 1 bond. 1. HF. आपके एटम के वैलेंस शेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे या जितने ऑर्बिटल हाफ फील्ड होंगे उतने ही क्या बनाते हैं वो bond बॉन्ड Bond. बनाते हैं ठीक है तो क्लास जब मैंने आपको एक पहले बताया था एक बार वापस बताता हूँ जब बॉन्ड बनता है राइट समझो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं जो ये एक हाइड्रोजन है एक मिनट एक हाइड्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन है ठीक है दो हाइड्रोजन है वो आपस में बॉन्ड बना रहा है ठीक है तो क्लास जब बॉन्ड बनता है बिटवीन टू हाइड्रोजन्स ये उठेगा नहीं एक मिनट को दो हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन गया ठीक है आपको दिख रहा है ये तो क्लास सबसे पहला क्वेश्चन मैंने एक वापस रिपीट कर रहा हूँ तो क्लास न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है बोलो Repulsion. Repulsion. ओके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में repulsion Repulsion. और ये बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है वो न्यूक्लियस के बीच में attraction Attraction. अट्रैक्शन राइट तो क्लास ये अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है तो जब दोनों फोर्स होते हैं क्लास जैसा अट्रैक्शन भी है और रिपल्शन भी है तो क्लास हमने एक चैप्टर सीखा था इक्विलिब्रियम हो गया अपना इक्विलिब्रियम चैप्टर सीख के Yes. Yes. तो क्लास इक्विलिब्रियम में क्या देखा था हम लोगों ने दोनों भी अट्रैक्शन भी और रिपल्शन भी है तो क्लास क्या होगा एक जगह पे दोनों न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे रुक जाएंगे राइट देखो अट्रैक्शन से वो Yes. पास आना चाहेंगे रिपल्शन से वो दूर जाना चाहेंगे राइट तो क्लास दोनों ही फोर्स एक साथ होने की वजह से कोई बीच में डिस्टेंस होगा जहाँ पे वो क्या होगा दोनों रुक जाएंगे एग्री Yes. नहीं Yes. बस दैट डिस्टेंस हम लोग इसको बोलते हैं क्या होता है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस चलते हैं इसको इक्विलिब्रियम डिस्टेंस equilibrium distance क्लास का मतलब क्या वो ऐसा डिस्टेंस है जहाँ पे अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्सेस क्या हो गए बैलेंस होगा राइट जितना Balance. अट्रैक्शन है उतना ही Repulsion. रिपल्शन भी है तो जितना अट्रैक्शन उतना रिपल्शन होने की वजह से क्या होगा ना वो दो न्यूक्लियस एक दूसरे से दूर Balance. जाएंगे ना एक दूसरे के पास आएंगे पास उसके आएंगे. बाद तो एक जगह सर पे एक वो बार रुक फिर से जाएंगे बताओ ना. देखो ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस क्या करेगा रिपेल करेगा राइट तो क्या करेंगे वो एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे राइट पर एक का न्यूक्लियस और दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बोलो अट्रैक्ट करेंगे तो क्या Attract. होना चाहेंगे वो पास आना पास. चाहेंगे राइट हाँ तो यहाँ पे दोनों फोर्सेस है कौन सा है अट्रैक्शन फोर्स एंड repulsion Repulsion. Repulsion force. force. अट्रैक्शन किसके बीच में इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन Electron राइट nucleus. और रिपल्शन किसके बीच में Nucleus Nucleus. nucleus. न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन Electron. तो क्लास समझो कोई चीज अगर आपको खींच भी रहा है और आपको दूर भगा भी रहा है राइट तो आप क्या करोगे खींचे जाओगे या पास आओगे बोलो Neutral. नहीं बीच में तो- जाके रुक जाएंगे। नहीं 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 अगर कौन सा फोर्स ज्यादा है उसके ऊपर डिपेंड है ना Yes. मेरा Yes. force है, हाँ तो क्लास तो आप एक जगह पे रुकोगे कब जब दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे
इक्वल हो जाएंगे, बैलेंस इक्वल बैलेंस हो जाएंगे। Equal. प्लस हाँ, तो प्लस जब अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होता है, बैलेंस हो जाता है, जितना अट्रैक्शन है उतना ही क्या हो जाएगा अगर, repulsion तो क्लास तो उस केस में जो दो न्यूक्लियस जहाँ पे खड़े है, तो क्लास मैं उसको बताता हूँ। समझो न्यूक्लियस ए, एक सॉरी एक एटम का न्यूक्लियस को मैं नाम देता हूँ न्यूक्लियस ए, और दूसरा का न्यूक्लियस बी, ठीक है। तो उनके बीच में डिस्टेंस है, राइट, तो डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, Equilibrium. equilibrium distance इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, मतलब से इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। क्लास नथिंग टू डू विद दिस चैप्टर। मैं आपको पूछता हूँ, आपका एक चैप्टर शायद हो गया है, ये डिस्टेंस ए बी, देखो इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, पर मुझे देखना आपको कितना याद रहता है चीजें। इस डिस्टेंस ए बी तो आप जब 2 से डिवाइड करते हो क्लास, उस चीज को क्या बोलते हैं, वंडरवॉल रेडियस। कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस, आप सीखा था, बोलो ये। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वेरी गुड, आपको सर ने सिखाया रहेगा पीरियड टेबल में कोवेलेंट। यस वेरी गुड, समझ में आ रहा है आपको। हाँ, यस यस, ए एंड बी के बीच में कौन सा बॉन्ड बना, बोलो, कोवेलेंट बॉन्ड बना। वाले covalent bond बना। तो क्लास जो दो न्यूक्लियाई है, राइट, वो कहाँ पे है, एट इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, ना दूर है, मतलब उसके ना उसके बीच के आगे जा पाएंगे ना उससे पास आ पाएंगे, राइट, तो वो एक फिक्स डिस्टेंस पे रह गए। तो क्लास वो डिस्टेंस ए बी आप अगर मेजर करोगे और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो उसको बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। आई होप इट इज क्लियर। हाँ क्लास, और सिर्फ डिस्टेंस ए बी को क्या बोलते हैं, बोलो एनीबॉडी, सिर्फ डिस्टेंस ए बी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ए बी। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, हाँ, उसको और उसका और क्या, वो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं। Diameter. नहीं नहीं, डायमीटर तो एक एटम का होता है, यहाँ पे दो एटम है। हाँ क्लास, कोवेलेंट डायमीटर, नहीं नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, नहीं, ठीक है, बताओ मैं। यस, प्लस जो डिस्टेंस, अगर सिर्फ डिस्टेंस ए बी बोलोगे आप, तो डिस्टेंस ए बी इज कॉल्ड एज द बॉन्ड लेंथ। क्या बॉन्ड बोलते हैं, बोलो, लेंथ, बॉन्ड लेंथ। याद रखो, ये bond length ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत लगता है बॉन्ड लेंथ, बहुत बार सुना रहेगा, मीथेन का बॉन्ड लेंथ, इसका बॉन्ड लेंथ, या सुनोगे आगे जाके। तो क्लास बॉन्ड दो न्यूक्लियस के सेंटर को जॉइन करके डिस्टेंस फाइंड करते हो, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज व्हाट, Bond length. length. bond length याद रहेगा। ये चैप्टर में नहीं है, आपको ये मालूम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू। Yes. यस yes हाँ, तो क्लास में क्वेश्चन है, एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल से कहां से ओवरलैप कर सकता है, ये एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है, दूसरे एस से कहां से ओवरलैप कर सकता है, बोलो, किधर से भी, इधर से कर सकता है, राइट, किधर से भी, Yes. इधर से भी कर सकता है, यहाँ से कर सकता है। क्लास अगर वो वहां पे नहीं तो देखो, अगर यहाँ से नहीं तो यहाँ से भी कर सकता था, इधर से भी कर Yes. सकता था, आगे से भी, मतलब किधर से भी कर सकता, राइट। तो क्लास समझो, आपके पास Yes. इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे, समझो आप बात करते हैं फ्लोरीन की, कहाँ पे किसी बात करते हैं, फ्लोरीन। फ्लोरीन, तो क्लास फ्लोरीन की बात करते हैं, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 9 Nine. 9, 1s2 2s2, 2s2 2p5 5 P5, तो p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5, 5 5 p में 2, py में 2 और pz में 1, राइट, 1, 1 px py एंड pz। Z, मतलब अगर एक फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन के साथ ओवरलैप करेगा, राइट, एक फ्लोरीन ओवरलैप करेगा दूसरे फ्लोरीन के साथ, तो कौन ओवरलैप करेगा किसके साथ, PZ. pz के साथ, राइट। yes, Yes. हाँ, तो क्लास, तो जब बॉन्ड बनेगा किसके बीच में, ये पहला आपका फ्लोरीन है, बराबर है, दिखाता है, एक मिनट को, फिर ये दूसरा फ्लोरीन है। तो क्लास में बताओ, क्लास ये डॉटेड लाइन का मतलब क्या, मतलब आपको मालूम है डॉटेड लाइन का मतलब, Z axis, जेड एक्स है, क्लास ये मतलब यार इस पेपर पे नहीं है, इस स्क्रीन पे नहीं है, उसका एक पार्ट 3D है, perpendicular है पेपर को, Perpendicular to the page. एक पार्ट उसका आधा पार्ट स्क्रीन के आगे और आधा पार्ट स्क्रीन के पीछे, पीछे, कुछ तो क्लास में एक काम करता हूँ, ऑर्बिटल का नाम ही चेंज करता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्लास में इसको जेड बोलता हूँ, ठीक है, ये कौन सा एक्सिस है, जेड। जेड चल क्लास ऐसे चलता है, yes
Yes, sir. बिंदा चलता है क्योंकि आप ऑर्बिटल को किसको भी नाम दो, पर एक बार नाम दिया तो उसका नाम चेंज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ये Z है, ये X है, X, तो ये भी X होना चाहिए, और अगर ये Y है तो ये भी Y, Y. हाँ। तो मैं क्वेश्चन इज, आपके पास हाफ पीरियड ऑर्बिटल कौन से डायरेक्शन में है? X एक्सिस पे, Y एक्सिस पे, Z Z एक्सिस पे? axis, Z axis. तो क्लास ओवरलैप कहाँ पे होगा बोलो? Z axis, Z एक्सिस पे होगा। प्लस क्या X और Y पे ओवरलैप हो सकता है? no, No. No. नहीं हो सकता, राइट? तो क्लास याद रखो, ओवरलैप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो सकता है। तो क्लास कोलन बॉन्ड को कोई डायरेक्शन होता है No. क्या? कोलन बॉन्ड पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही बनता है, बोलिए। no, No. नहीं, क्लास ये क्या बन रहा है? Z, ये बॉन्ड सिर्फ Z एक्सिस पे ही बन रहा है, ये बॉन्ड Y एक्सिस और X एक्सिस पे तो नहीं बन सकता। ये तो ये जो बॉन्ड बनेगा फिर के बीच में, कौन सा एक्सिस में बनेगा बोलो? Z axis, Z axis. ये बनेगा। प्लस क्या ये बॉन्ड Y एक्सिस पे X एक्सिस में बन सकता है? No. No. नहीं, प्लस क्यों नहीं? ये Y एक्सिस पे जो ऑर्बिटल है उसके उसके इलेक्ट्रॉन कैसे है? Fulfilled. Fulfilled. Fulfill, complete. Y एक्सिस वाले ऑर्बिटल ओवरलैप करके बॉन्ड नहीं बनेगा। नहीं बना सकते, राइट? बराबर क्लास एवरीवन? Yes. Yes. ओके। क्लास सिमिलरली Z एक्सिस X एक्सिस के जो दो इलेक्ट्रॉन है, राइट, या X एक्सिस का जो p ऑर्बिटल है वो भी कैसा है? Fully filled है। Fulfilled. फुल फिल्ड है। तो क्लास इसका X और दूसरे का X क्या ओवरलैप कर सकते हैं? No, No. तो यहाँ पे ओवरलैप कौन कर सकता है? सिर्फ Y के PZ, साथ, PZ. सॉरी Z के साथ रहा है, आई एम सॉरी, Z के साथ। तो क्लास डायरेक्ट बॉन्ड कहाँ पे बन रहा है? Z अलोंग axis, Along Z Z axis. axis. प्लस आपके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, हाँ या ना? Yes. 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 बॉन्ड सिर्फ Z एक्सिस पे ही बनेगा। तो क्लास अगर बॉन्ड सिर्फ Z एक्सिस पे ही बनेगा तो क्लास कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बनता है, राइट? तो बोलते हैं Yes. कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड आर Directional in डायरेक्शन। nature. प्लस लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। चलो, आपके पास नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर क्या है? 14. 7। 7. 7, मास नंबर 14 है, 1s2 2s2। 2p3. हाँ, प्लस पी में px py pz, और तीनों के तीनों कैसे हैं? Half. Half filled. नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है बोलो? 3, 3. नाइट्रोजन फॉर्म 3 बॉन्ड्स, राइट? कहाँ पे? एक बॉन्ड x X, एक्सिस Y, पे, Z, x y राइट? हाँ। Yes. प्लस प्लस एक px ऑर्बिटल है, ये py ऑर्बिटल है, और ये PZ, z PZ. ऑर्बिटल है। और क्लास तीनों ऑर्बिटल कैसे है? हाफ फेल्ड है। Half. Half filled. x भी हाफ फेल्ड है। क्लास में व्हाइट कलर से x ऑर्बिटल दिखाता हूँ, हाफ फेल्ड है, राइट? मैं ब्लू कलर से y ऑर्बिटल दिखाता हूँ, वो भी कैसा है? half filled, Half filled. Half filled. और मैं रेड कलर से z ऑर्बिटल दिखाता हूँ, वो भी कैसा है? half Half filled, filled. हाफ फेल्ड है। प्लस हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर कितना है? 1. 1, 1। कॉन्फ़िगरेशन 1s. 1s1. प्लस क्या s ऑर्बिटल हाफ फेल्ड है? Yes. 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 तो प्लस क्या हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल नाइट्रोजन के pH के साथ ओवरलैप कर सकता है? yes, Yes. व्हाट इज शेप ऑफ s ऑर्बिटल? स्फेरिकल, राइट? Spherical. Spherical. जो स्फेरिकल शेप s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का और क्या करेगा? अप्रोच करेगा किसको? x ऑर्बिटल को, ठीक है? इसके नाइट्रोजन के। Nitrogen. तो क्लास वो कहाँ से अप्रोच करेगा? x एक्सिस से करेगा ना, बराबर है? उसको कहाँ पे अप्रोच करना पड़ेगा? उसको बॉन्ड बनाना है, एक को x पे करना पड़ेगा, एक को कहाँ से अप्रोच करना पड़ेगा? दूसरा हाइड्रोजन को कहाँ से अप्रोच करना पड़ेगा? y से, और तीसरे को कहाँ से अप्रोच करना पड़ेगा? z से। Z. Z. और 3 हाइड्रोजन अप्रोच करेंगे। तो ये देखो, ये कैसा ओवरलैप होगा बोलो? px और s में, राइट? दूसरा axial ओवरलैप कैसा होगा overlap, बोलो? दूसरा ओवरलैप कैसा होगा? py और s में, राइट? Yeah. दूसरा ओवरलैप कैसा होगा Yes. बोलो? PZ and PZ. और s में। ये समझ रहे आपको या नहीं? पहले बताओ। yes, प्लस बॉन्ड किधर भी ओवरलैप, जो ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं वो रैंडमली कौन से डायरेक्शन में ओवरलैप हो रहा है? पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप हो रहा है, बोलो? particular direction, Particular direction तो में. ओवरलैप कहाँ पे हो रहा है? x एक्सिस पे, Y. y axis. एक्सिस Y axis and YZ. Z and axis. z axis पे। तो मतलब पहला ओवरलैप कैसा था? px एंड s S ओवरलैप, राइट? orbital, दूसरा ओवरलैप कैसा था? py एंड s YS, ऑर्बिटल। S orbital. तीसरा ऑर्बिटल कैसा था? pz एंड। PZ and S PZ orbital. and Z. तो आपको यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेगा। क्लास क्यों? हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिटल है,
जिसके पास हाफ फील्ड, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, राइट? तो 3 हाइड्रोजन है, तीनों का न्यूक्लियस, तो इसका इलेक्ट्रॉन बराबर इसके इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैप करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ ओवरलैप करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ ओवरलैप करेगा। क्लास आर यू क्लियर? हाँ या ना? Yes. Yes. क्लास आपको जब बॉन्ड बनेगा, समझो मेरे पास नाइट्रोजन है, तो एक बॉन्ड कहाँ बनेगा? एक बॉन्ड बनेगा एक्स एक्सिस पे, राइट? Yes. बॉन्ड बनेगा Yes. वाई एक्सिस पे, Y-axis. और एक बॉन्ड बनेगा Z axis. Z axis. बस। ये एंगल कितना होना चाहिए? 90. 90. तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 90. 90. 90. कौन सजेस्ट करता है? वीबीटी, वैलेंस VBT. बॉन्ड थ्योरी। Bond theory. अगला हम लोग बाद में प्रूव करेंगे रॉन्ग है, ठीक है? नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। बाद में प्रूव करेंगे एंगल 90 नहीं होता, क्यों नहीं होता देखेंगे। पर वीबीटी 120 कितना, वीबीटी तो अपने को कितना ये कर रहा है, प्रेडिक्ट कर रहा है 90 डिग्री। 90 degree. तो हमें इतना ही बताना है कि वीबीटी बोल रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बनते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड पर्टिकुलर डायरेक्शन में बनते हैं, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। आर यू क्लियर? Yes. Yes. पक्का? Yes. एनी अदर क्वेश्चन? आपको कोई क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है किसी को? बस बोलिए, कोई क्वेश्चन है आपको? नो नो? ओके। तो क्लास हमने कितने पोस्टर देखे वीबीटी के? बहुत से पोस्टर देखे, तो वापस रिपीट करने की जरूरत है? अगर है तो 1 मिनट रुको, फटाफट 1 मिनट दो मुझे। Just give me a minute. तो आपको स्क्रीन दिख रहा है सब लोग को? Yes. Yes. एक मिनट। क्लास देखो, पोस्टुलेट, पहला पोस्टुलेट। हाँ क्लास, कोई स्टूडेंट आराम से, एक ही स्टूडेंट पहला पोस्टुलेट पढ़ो। रेडी? जल्दी कोई तो एक पढ़ो फटाफट। अब इतने आंसर दे दो, कोई तो पढ़ेगा। चलो जल्दी जल्दी। अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, बोलिए। A covalent bond is formed when हाँ बोलो बोलो। the half-filled valence orbital of one atom overlaps with the half-filled valence orbital of another atom. ओके, यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? No. नो। No. सेकंड पॉइंट पढ़ो। The electrons in the half-filled valence orbital must have opposite spins. अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, दूसरा कैसा होना चाहिए? Anti-clockwise. Anti-clockwise. Clockwise. थर्ड पॉइंट पढ़ो पढ़ो, बड़ा है, पढ़ो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। During bond formation, the half-filled orbitals overlap and the opposite spin of the electron get neutralized. बराबर है ये? हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन गेट न्यूट्रलाइज। ओके, कंटिन्यू Neutralized. कंटिन्यू। The increased electron density decreases the nuclear repulsion and energy is released during overlapping of the orbitals. बराबर, जब कोई बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, रिलीज होता है? Release. Release. उतना एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रहा है, मतलब कि उतना ओवरलैपिंग स्ट्रांग हो रहा है, और बॉन्ड क्या बन रहा है? स्टेबल बन रहा है, ठीक है? Stable. हाँ, पॉइंट नंबर 4 पढ़ो। Greater the extent of overlap, stronger is the bond formed. However, complete overlap of orbitals does not take place due to internuclear repulsions. तो क्लास 100% ओवरलैप हो सकता है? No. नहीं, क्लास 100% ओवरलैप होता है, क्या होगा? न्यूक्लियस को टच करेंगे, राइट? Yes. 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 This is not possible, न्यूक्लियस को टच नहीं कर सकते, ठीक है? तो 100% ओवरलैप इज नॉट पॉसिबल। ओके, देन पॉइंट नंबर 5 पढ़ो। पॉइंट नंबर 5 प्लीज, जल्दी जल्दी। If an atom possesses more than one unpaired electrons, then it can form more than one bond. एक मिनट, क्लास हमने देखा था फ्लोरीन कैन फॉर्म ओनली 1 बॉन्ड, राइट? तो उसके बाद देखिए Yes. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। नाइट्रोजन कैन फॉर्म 3 बॉन्ड, क्योंकि उसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, बराबर? Yes. Yes. कंटिन्यू। So number of bonds formed will be equal to the number of half-filled orbitals in the valence shell.
that is number of unpaired electrons. हाँ क्लास दोनों का मतलब एक ही होता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल बोला है फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोला वन एंड सेम थिंग, ठीक है। हाँ नेक्स्ट वन क्लास ये वर्ड हमने यूज किया था थोड़े टाइम पहले, पढ़ो नेक्स्ट वन। The distance at which the attractive and repulsive force balance each other is the equilibrium distance between the nuclei of the bonded atoms. At this distance, the total energy of the bonded atom is minimum and stability is maximum. राइट, मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। क्लास उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, मैंने बताया था आपको, Equilibrium distance. Online. बॉन्ड लेंथ, ठीक है। हाँ Bond length. हाँ बॉन्ड लेंथ, वेरी गुड, हाँ चलेगा। नेक्स्ट, Electrons which are paired in the valence shell cannot participate in bond formation. However, in an atom, if there is one or more vacant orbital present, then these electrons can unpair and participate in bond formation, provided the energies of the filled and vacant orbitals differ slightly from each other. क्लास ये पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया जानबूझ के, क्योंकि ये आपको डिस्कस करना है इन नेक्स्ट स्टेज, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो क्लास आई विल एक्सप्लेन दैट इन डिटेल, बहुत डिटेल में देखेंगे इसको, क्योंकि इसको अभी आपको समझेगा नहीं। तो पॉइंट नंबर 7 नेक्स्ट लेक्चर में पहले, सबसे पहले पॉइंट नंबर 7 ही डिस्कस होगा, तो उसको पता थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। मैं बहुत इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा, पर सबको इसका थियरी समझना बाकी है।